FBR کی ڈیجیٹائزیشن حکومت کی اہم معاشی اصلاحات میں ایک اہم سنگ میل وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے امور سے متعلق اجلاس FBR کے عمل درآمد کے نظام کو مزید فعال بنانے کے حوالے سے جامع حکمت عملی ترتیب دینے کی ہدایت۔ محصولات میں بہتری سے عوام کو سروسز کی فراہمی اور سوشل سیکٹر میں بہتری آئے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ اور عالمی امن میں چین کا کردار ہمیشہ نمایاں رہا ہے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت پاکستان اور چین کے درمیان B2B رابطے بڑھیں گے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی، معدنیات اور دوسرے شعبوں میں تعاون کو فروغ حاصل ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا عوامی جمہوریہ چین کے 75ویں یوم تاسیس کی تقریب۔ چین نے سنگ میل عبور کیے۔ عوامی جمہوریہ چین کے 75ویں یوم تاسیس پر صدر آصف علی زرداری کی چینی قیادت۔ وزیر اعظم کا 23 سے 27 ستمبر تک دورہ امریکہ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا موقف پیش کیا جائے گا۔ محمد شہباز شریف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ پاکستان 21ویں مرتبہ 2 سال کے لیے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے بورڈ آف گورننس کا رکن منتخب۔ ایٹامک انرجی ایجنسی کا ممبر منتخب ہونا پاکستان کی نیوکلیئر انرجی کے پرامن اور مثبت استعمال کی علامت ہے۔ پاکستان نیوکلیئر انرجی کے شعبے میں اس کے پرامن استعمال کے تجربات کو شیئر کرنے کا اعادہ رکھتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پر 7 گھنٹے طویل اجلاس۔ 77 اقدامات، 70 منصوبوں، 7 پروگرامز پر پیش رفت کا جائزہ۔ ترقیاتی اسکیموں کے لیے 278 ارب روپے مختص، 83 ارب روپے جاری کیے جا چکے۔ جدید ٹیکنالوجی، ڈرون اور GIS میپنگ کے ذریعے مانیٹرنگ کو متعارف کرایا جا رہا ہے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی وزیر اعلیٰ کو بریفنگ۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ کے تحت مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا الیکشن کمیشن کو خط۔ پارلیمانی نظام کی خود مختاری اور وقار برقرار رکھنا ضروری ہے۔ کسی ایک جماعت میں شامل ہونے والا آزاد رکن پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا۔ پارلیمنٹ کی منظوری اور صدر مملکت کے دستخط کے بعد الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم ہو چکی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ماضی کے ایکٹ کے مطابق اطلاق نہیں ہوتا۔ الیکشن کمیشن جمہوری اصولوں کی پاسداری یقینی بنائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا خط۔ پارلیمنٹ سپریم ادارہ، قانون سازی اس کا حق ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلے نے بہت سے سوالوں کو جنم دیا۔ آرٹیکل 63A کی تشریح میں آئین کو دوبارہ تحریر کیا گیا۔ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے والے PTI ارکان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسپیکر قومی اسمبلی کا الیکشن کمیشن کو خط پارلیمان کی بالادستی کو تقویت دیتا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق۔ نظام انصاف میں درستگی کے لیے اصلاحات ناگزیر۔ بی بی شہید نے کہا ججز سیاست کے لیے اپنی جماعت بنا لیں۔ افتخار چودھری کی روایت کو ثاقب اور گلزار نے قائم رکھا۔ عدالتی امور سے متعلق فیصلے کرنے پر 18ویں ترمیم اڑانے کی دھمکی دی گئی۔ 15% آئینی معاملات، 90% عدالتی وقت کھا جاتے ہیں۔ نظام ٹھیک کرنے کے لیے آئینی عدالت کا کوئی راستہ نہیں۔ عوام کو جلد انصاف کی فراہمی کے لیے اقدامات یقینی بنانے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری۔ عبدالعلیم خان کی ہدایات پر عمل درآمد۔ ایم ٹیگ صارفین کی تعداد 92% سے زائد ہو گئی۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی اپنا سسٹم جلد آن لائن کرے۔ سیف سٹی کی طرز پر اسٹیٹ آف دی آرٹ مانیٹرنگ روم بنائے۔ تمام شاہراہوں پر بہترین ٹریکنگ سسٹم بحال کیا جائے گا۔
वाना जनूबी वज़ीरिस्तान में कबायली अमायदीन और उलमा के ग्रैंड जिरगे का इनेकाद। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वन डॉक्यूमेंट रजीम एहसन कदम और वक्त की ज़रूरत करार। फितना अल ख़वारिज के खिलाफ जारी जंग में पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। सितंबर 1965 जंग के 20वें रोज पाकिस्तानी अफवाज की मैदान जंग में भारतीय अफवाज पर अपनी बर्तरी। गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली बर्बरियत जारी। इसराइली फौज की जालिमाना कार्रवाइयाँ। गजा की पट्टी में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। नसीरात पनाहगज़ीन कैंप में बच्चों समेत 8 शहरी शहीद। गजा पर इसराइली जंग के आगाज़ से अब तक 41,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, जबकि 95,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को गजा में हुकूक अतफ़ाल की वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जियों का मुर्तकब करार दे दिया। फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए सरगर्म। कशीदगी किसी के जनूबी अफ्रीका की खातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान T20 सीरीज मुल्तान में तीसरा और फैसला कुन मैच। पाकिस्तान के 154 रन के हदफ के तआक़ुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। कौमी टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 153 रन बनाए। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। खेल के मैदानों में एक बार फिर फतह और कामरानी के झंडे गाड़ने लगा। हुज़ैफा शाहिद ने जापान में जूनियर स्क्वाश चैंपियन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि
कि FBR की डिजिटाइजेशन हुकूमत की माशी इस्लाहात में एक अहम संग मील है। इस्लामाबाद में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर से मुतालिक अहम इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि FBR मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि FBR का इन्फोर्समेंट का निज़ाम बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि महसूलात में बेहतरी से अवाम को सर्विस की फराहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म ने FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की तारीफ़ करते हुए FBR की इन्फोर्समेंट निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाने के हवाले से जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि अच्छे टैक्स दहिंदगान को दावत दें और FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर उनसे मुशावरत की जाए और तजावीज़ दी जाएँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि निजी शोबे का फ़रोग़ हुकूमती तरजीहात में शामिल है। फ़ाल और खुशहाल निजी शोबा मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने FBR के तमाम मंसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने जबकि स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इक़दामात तेज़ तर करने की भी हिदायत की। इजलास को FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग में बताया गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल टैक्स वसूली को बेहतर बनाने के लिए ईमानदारी के साथ कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और अमले की हौसला अफजाई और टैक्स कवानीन के नफाज को बेहतर बनाने के हवाले से जामे हिकमत अमली अपनाई जा रही है। इस प्रोग्राम से माशी तरक्की का सफ़र रोके बगैर बेहतर अंदाज में ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया जा सकेगा और हर तबके में से पूरा टैक्स देने वाले लोगों को मज़ीद आसानियाँ दी जाएंगी। तजावीज़ के मुताबिक वक्त पर पूरा टैक्स अदा न करने वाले और फ्रॉड में शामिल अफराद के खिलाफ सख्त इक़दामात और लेन देन पर पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं, जिससे माशरे में टैक्स चोरी के रुझान को रोका जा सकेगा। इजलास ने FBR के टैक्स वसूली के इंतज़ाम के हवाले से FBR के होम ग्रोन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की असूली मंजूरी दे दी। ये प्लान वज़ीर आज़म की हिदायत पर FBR ने मुल्क के दीगर माशी और टेक्नोलॉजी माहिरीन के साथ मिलकर गुज़श्ता 25 बरस की टैक्स वसूली का तफसीली तज्ज़िये के बाद तरतीब दिया है। पहले मरहले में मुल्क को 32% टैक्स रेवेन्यू देने वाले लार्ज टैक्स पेयर्स यूनिट कराची में अच्छी कारकर्दगी और दयानतदार अफसरान की तैनाती को यकीनी बनाया जाएगा और उनको अपना काम करने के लिए ऑडिटर्स और माहिरीन की खिदमात हासिल होंगी। उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और अमले को एजाज़िये भी दिए जाएंगे और बड़ी कलील मुद्दत में इस मॉडल को तमाम मुल्क में नाफिज किया जाएगा। स्मगलिंग को रोकने के लिए FWO की मावनत से नई चेक पोस्टें बनाने का फैसला भी किया गया। मुल्क की मईशत के लिए एक और अच्छा दिन। हुकूमत की माशी पॉलिसियों के समरात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखने में आ रहा है। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास, उनसे जान लेते हैं मार्केट में ज़्यादा तेज़ी की क्या वजूहात हैं। जी ज़मीर अब्बास, अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए आज एक और ज़बरदस्त दिन। 100 इंडेक्स में इस वक्त 900 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है और मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 82,372 पे पहुंच चुकी है। इनकी जो मेन रीजंस है मार्केट के बढ़ने की, उसमें सबसे पहली वजह यह है कि कल जब स्टेट बैंक ने अपने रिजर्व्स के नंबर्स शाया किए हैं तो उसमें हमें आइडिया हुआ है कि तकरीबन 26 माह के बाद पाकिस्तान स्टेट बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो 9.5 बिलियन डॉलर से तजावज़ कर गए हैं, क्योंकि जो रेमिटेंसेस ज़्यादा आ रही हैं, हमारी इंपोर्ट्स जो है वो कम हुई हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, जिसकी वजह से हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो है उसमें अब जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। कल स्टेट बैंक की जानब से PIB ऑक्शंस किए गए थे, उसमें भी कट ऑफ यील्ड जो है वो काफ़ी कम कर दी गई थी। ये एक टेस्टिमेंट है, एक इशारा है कि आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसमें भी जो इंटरेस्ट रेट है वो उससे मजीद कम कर दिया जाएगा। इस वक्त इंटरेस्ट रेट जो है वो तकरीबन 17.5 पे चल रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि दिसंबर से पहले जो है ये इंटरेस्ट रेट है ये तकरीबन 14 से 15 पॉइंट्स तक आ सकता है। ये एक बड़ी खुशखबरी खास करके बिजनेस कम्युनिटी के लिए, क्योंकि जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होगा तो जो सरगर्मियां हैं इंडस्ट्रीज की या जो मौशी सरगर्मियां हैं उसमें मजीद तेजी आएगी। ना सिर्फ ये बल्कि अगर हम FBR के नंबर्स देखें तो FBR में इस वक्त तकरीबन 1.7 मिलियन यानी कि तकरीबन 17 लाख से ज्यादा लोगों ने जो है वो अपने टैक्स रिटर्न जमा करवाए हैं। ये तकरीबन पिछले साल 2023 में 9 लाख से ज्यादा थे, तो इस वक्त तकरीबन उसमें भी 8 लाख से ज्यादा इंक्रीज देखा जा रहा है। ये भी एक इशारा है कि हमारे मुल्क में टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़ती जा रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग अब टैक्स जमा कराने के ख्वाहिशमंद हैं। खासकर हुकूमत की पॉलिसीज अब ऐसी रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो टैक्स पे करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये काफी अशारी काफी मुस्बत हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि इन पॉलिसीज का तसलसल अगर ऐसे जारी रहा तो स्टॉक मार्केट में मजीद तेजी देखने में आएगी। तो ये काफी बेहतर हफ्ता रहा है पाकिस्तानी मईशत के लिए। जी, पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी का आलमी सतह पर एतराफ़। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक को 2024 में अब तक की दुनिया की बेहतरीन मार्केट करार दे दिया है।
पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी का आलमी सतह पर इतराफ़। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक को 2024 में अब तक दुनिया की बेहतरीन मार्केट करार दे दिया। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से एक अच्छी खबर, पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी का आलमी सतह पर इतराफ़। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक को 2024 में अब तक दुनिया की बेहतरीन मार्केट करार दे दिया। ब्लूमबर्ग ने कहा है कि PSX का 100 इंडेक्स एक दहाई के सबसे ज्यादा बैरूनी खरीदारी पर बंद हुआ है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे उमर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, आगाह कीजिएगा, ब्लूमबर्ग ने भी एतराफ़ किया और 2024 में दुनिया की बेहतरीन मार्केट करार दिया गया है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की मईशत के लिए ये एक और अच्छी खबर आई है। पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी का जो है आलमी सतह पर एतराफ़ किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग जो कि उसने भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को 2024 में अब तक की दुनिया की बेहतरीन मार्केट करार दिया है। ब्लूमबर्ग का कहना है कि PSX का जो 100 इंडेक्स है वो एक दिहाई की सबसे ज़्यादा बैरूनी खरीदारी पर बंद हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो उसमें गुज़श्ता रोज़ ज़बरदस्त तेज़ी पर ब्लूमबर्ग का कहना है कि बैरूनी फंड्स ने रवां साल 8.7 करोड़ डॉलर मालियत के शेयर खरीदे हैं। ब्लूमबर्ग का ये भी कहना है कि बैरूनी खरीदारी और बेहतर इशारियों का रुझान जो है वो मस्बत रहा है। 100 इंडेक्स ने 1.1% इजाफे से 81,459 पर जो बंद हुआ है गुज़श्ता रोज़। 100 इंडेक्स में रवां साल जो है वो ब्लूमबर्ग के मुताबिक 100 इंडेक्स में रवां साल 30% इजाफा देखा गया है। ब्लूमबर्ग का ये भी कहना है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक दहाई में सबसे बड़ी गैर मुल्की खरीदारी के बाद रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। जी शुक्रिया उमर फारूक आपका, हमें तफसील से अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी का आलमी सतह पर एतराफ़। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक को 2024 में अब तक दुनिया की बेहतरीन मार्केट करार दे दिया। ब्लूमबर्ग ने कहा है कि PSX का 100 इंडेक्स एक दहाई की सबसे ज़्यादा बैरूनी खरीदारी पर बंद हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता रोज़ ज़बरदस्त तेज़ी पर ब्लूमबर्ग का कहना है कि बैरूनी फंड ने रवां साल 8.7 करोड़ डॉलर मालियत के शेयर खरीदे हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बैरूनी खरीदारी और बेहतर माशी आशारियों का रुझान मुस्बत रहा है। SIFC के ताउन से ग्रीन टूरिज्म कंपनी गिलगित बल्तिस्तान में पायदार सियाहत को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सयाहती कैपिटल भी कहा जाता है, जहां कुदरती हुस्न और सकाफती रंगों से मालामाल सयाहत के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। ग्रीन टूरिज्म कंपनी सयाहत के शोबे की तरक्की, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए रोजगार के मौक़े पैदा करने और कारोबारी मंसूबों पर तवज्जो मरकूज कर रही है। सयाहों की सहूलत के लिए नलतर में 4 स्टार और 5 स्टार सिटी होटल्स के साथ साथ शिकारगाहों का क़याम भी किया गया है। ग्रीन टूरिज्म कंपनी के इन इक़दामात का मकसद सयाहत के शोबे में एक हुनरमंद अफराद क़ुव्वत और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के जरिए गिलगित बल्तिस्तान में आलमी मयार के सयाहती मकामात तैयार करना है। इन इक़दामात के जरिए सयाहत के फ़रोग के साथ साथ बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी राग़िब करने में भी मदद मिलेगी। SIFC के ताउन से ग्रीन टूरिज्म कंपनी के मंसूबों से सयाहत समेत मुल्की माशी सरगर्मियों में मज़ीद इजाफा होगा। अवामी जमहूरिया चीन के 75वें यौम तासीस के सिलसिले में इस्लामाबाद में चीनी सिफारतखाने के ज़ेर एहतमाम तकरीब हुई। तकरीब से खिताब में सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन अक़वाम आलम में अहम मकाम रखता है। मज़ीद खबरों में आपको आगाह करेंगे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन मुंतखब हो गया है। पाकिस्तान को 21वीं मरतबा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन मुंतखब कर दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मेंबर मुंतखब होना पाकिस्तान की न्यूक्लियर एनर्जी के पुरअमन और मुस्बत इस्तेमाल की अलामत है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान को 2 साल के लिए आलमी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में मुंतखब किया गया है। पाकिस्तान को वियना में IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस में रवा माह शुरू होने वाली टर्म के लिए भी मुंतखब किया गया है। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर एनर्जी के पुरअमन इस्तेमाल के तजुर्बात के तबादले के लिए पुरअज़्म है। रवा माह के आगाज़ पर पाकिस्तान न्यूक्लियर एनर्जी के 10वें कन्वेंशन ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी में बतौर सदर भी मुंतखब हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से मुतालिक इजलास हुआ। इस इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने 77 इक़दामात, 70 मनसूबे और 7 प्रोग्राम्स पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला को बताया गया कि सूबे में अवाम की भलाई की 287 स्कीमों पर गौर हुआ। इजलास में ज़राअत, मौसमियात, IT, समाजी बहबूद समेत मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए अब तक पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया।
ब्रीफिंग में बताया गया कि तरक्याती स्कीमों के लिए 278 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जबकि 83 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन और GIS मैपिंग के जरिए मॉनिटरिंग को मुतारिफ कराया जा रहा है। मंसूबों पर पेशरफ्त वक्त के वाज़ेह तयन के साथ साथ यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम की भलाई के मंसूबों की शफाफियत, अमल दरामद की रफ्तार और मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि 9 अगस्त से नाफिजुल अमल इलेक्शन तरमीमी बिल के तहत मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फ़ैसला किया जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने स्पीकर कौमी असम्बली के ख़त को एक संग मील करार देते हुए कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। तफसील बताएंगी नमरा सोहेल। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने खत में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों को किसी भी सियासी जमात को देने के हवाले से फैसला इलेक्शन कमीशन तरमीमी एक्ट 2024 के तहत करे। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के बाद इलेक्शन एक्ट 2017 खत्म हो चुका है। खत के मतन के मुताबिक पार्लिमानी खुद मुख्तारी के असूलों की बालादस्ती के लिए इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 पर अमल दरामद नागुज़ीर है। खत में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकदमे में जो फैसला दिया था वो अब इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के बाद काबिल अमल नहीं रहा। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट 2024 के तहत मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट नए कानून के तहत करने का पाबंद है। पार्लियामान का तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट 2024 सदर की मंजूरी के बाद कानून बन चुका है। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन कमीशन को खत संगे मील है। उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले ने बहुत से सवालों को जन्म दिया है। सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने वाले PTI में कैसे शामिल हो सकते हैं? गलती तो तरीके इंसाफ से हुई। तरीके इंसाफ के जो मुबैना मेम्बरान थे उनको चाहिए था कि वो ऐसी पार्टी ज्वाइन करते जिसका फ्लोर ऑफ द हाउस वजूद होता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इन्होंने ज्वाइन की जिसका फ्लोर ऑफ द हाउस वजूद ही नहीं था। फिर भी एक फैसले के जरिए उनको ये हक दे दिया गया कि आप तरीके इंसाफ ज्वाइन कर लें, पिछली पार्टी छोड़ दें, एफिडेविट कैंसिल हो जाएगा। और ना सिर्फ ये, आजाद उम्मीदवारों को भी कहा गया कि आपको भी यह हक हासिल है कि आप तरीके इंसाफ ज्वाइन कर लें। तो रिसटे में एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को जब उन्होंने वोट डाला, उनको ना सिर्फ वोट उनका गिना नहीं गया, उनको डीसीट कर दिया गया। और इधर ऐसी नवासियात हैं, और स्पीकर ने ठीक कहा कि इलेक्शन एक्ट में अब लिखा गया है कि जो आजाद उम्मीदवार हैं वो एक पीरियड के लिए आजाद रहेंगे, और अगर वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करते तो वो आजाद तस्वर किए जाएंगे। ना सिर्फ आजाद तस्वर किए जाएंगे बल्कि वो मेंबरान जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की है, ये कैसे हो सकता है कि उनको तरीके इंसाफ में जाने की इजाजत दे दी जाए? क्या ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है? ये आइन और कानून, ये अवाम ने जिन लोगों को ये हक देकर पार्लियामान में भेजा है, ये कानून बनाना, आइन में तरमीम करना, ये उनका हक है और इस हक से उनको कोई महरूम नहीं कर सकता। स्पीकर का ये एक अहम कदम है और इंशाअल्लाह ताला पार्लियामान की बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी के लिए हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। खत में स्पीकर पंजाब असेंबली ने लिखा है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट और पार्लियामानी बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने लिखा कि पार्लियामान की खुद मुख्तारी हमारी जमहूरी निज़ाम की बुनियाद है। पार्लियामान के खुद मुख्तारी के खिलाफ कोई भी कदम जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। एक्ट पर अमल दरामद किए बगैर इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं कर सकता। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत नागुज़ीर है। इस्लामाबाद में वकला से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम को जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए इक़दामात यकीनी बनाना होंगे। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं यासिर हुसैन। इस्लामाबाद में वकला से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में वकला का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि अदालतों में बहुत सारे मुकदमात जेर इल्तवा हैं। भुट्टो रेफरेंस में इंसाफ के लिए बरसों इंतजार करना पड़ा। अगर एक साबिक वजीर आजम को 50 साल मिलता, बेटी भी वजीर आजम हो 30 साल जदोजहद करे और उसको भी जवाब ना मिले, सदर जरदारी ने रेफरेंस भेज के फिर भी 10 साल आप इंतजार करें जब तक नवासी पूरा खानदान ना पहुंचे और आपका दरवाजा पे खटखटाए कि ये आपका पेंडिंग पिटीशन है। मुझे इतना इंतजार करना पड़ा।
بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ججز کی تقرری کے عمل میں شفافیت بے نظیر بھٹو کا مطالبہ تھا۔ میثاق جمہوریت کے تحت وعدے کے مطابق ترمیم کرنے تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا چاہتے ہیں کہ ججز کی تقرری کے عمل میں وکلا بھی شامل ہوں۔ ہم ہر فرنٹ پہ لڑیں گے، ہمیں ہائی کورٹ بارز میں لڑنا پڑے گا، سپریم کورٹ بارز میں لڑنا پڑے گا، آپ کے پارلیمان میں لڑنا پڑے گا، ہمیں سڑکوں پہ لڑنا پڑے گا، تو لڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم نے اپنے وعدے پورے کرنے ہیں، ہم نے عوام کو جلدی اور فوری انصاف دلوانا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہمارے منشور کا حصہ ہے عدلیہ کو اتنا مضبوط بنا دیں کہ عوام کو فوری اور سستا انصاف ملے۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نجکاری سرمایہ کاری بورڈ اور مواصلات کے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں شاہراہوں کی تعمیر اور ایم ٹیکس سہولت پر عمل درآمد سے متعلق غور کیا گیا۔ وفاقی وزیر کی ہدایات پر عمل درآمد سے ایم ٹیکس صارفین کی تعداد 92% سے زائد ہو گئی۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی ترقی یافتہ ممالک کی طرز پر ہائی ٹیک سسٹم اختیار کرے، موٹر ویز اور جی ٹی روڈز پر گاڑیوں کی تعداد اور ہر طرح کی مانیٹرنگ کو یقینی بنائے۔ عبدالعلیم خان نے این ایچ اے کو جدید کیمروں اور ٹیکنالوجی کے استعمال کو یقینی بنانے اور سیف سٹی کی طرز پر اسٹیٹ آف دی آرٹ مانیٹرنگ روم بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ این ایچ اے اپنے مانیٹرنگ سسٹم کو موٹر وے پولیس کے ساتھ ہم آہنگ کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹھوس پالیسیوں اور مناسب انفورسمنٹ سے بہتری لائی جا سکتی ہے۔ شاہراہوں پر ایم ٹیگ کے بجائے کیش دینے والوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ جس گاڑی کا ایم ٹیگ کیش کے بغیر ہے اسے بھی جرمانے کا پیغام جانا چاہیے۔ شہدائے پولیس کو سلام۔ کانسٹیبل راشد علی نے بہادری کی مثال قائم کرتے ہوئے عوام کی حفاظت کی خاطر شہادت کو گلے لگا لیا۔ انہوں نے 17 جنوری 2022 کو کراچی کمپنی کے علاقے میں دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ کانسٹیبل راشد علی شہید کی بیوہ کا کہنا ہے کہ میرے خاوند انتہائی شفیق اور دلیر انسان تھے۔ شہید راشد علی کی بیٹیوں نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے بابا نے عوام کی حفاظت کی خاطر جام شہادت نوش کیا۔ محمد راشد شہید کی بیوہ، مجھے فخر ہے اپنے شوہر پہ کہ میں ایک شہید کی بیوی ہوں۔ اس کی کمی میں لمحہ لمحہ محسوس کرتی ہوں۔ وہ دن میں کبھی بھی نہیں بول سکتی جس دن اس کو یہ فائر لگے تھے۔ بیان سے باہر ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی مجھ پہ وہ لمحہ کیسے گزرا۔ پھر اللہ نے اس کو زندگی دی، 6-7 گھنٹے کا اس کا آپریٹ ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہ اس کو 37 گھنٹوں کے بعد اس کو ہوش آئی۔ مگر میں بہت خوش تھی کہ شکر ہے کہ یہ میری زندگی میں واپس آیا، میرے بچوں کے پاس واپس آیا۔ مگر خدا کو یہ منظور نہیں تھا کیونکہ اس کو فائر پیٹ پہ لگے تھے، ٹانگ پہ لگے تھے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے اٹھ نہیں سکے۔ میں اپنے بابا کی لاڈلی بیٹی ہوں۔ میرے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں جب بھی ان کے کمرے میں جاتی ہوں مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے۔ جب بھی میں ان کے کمرے میں جاتی ہوں وہ ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ بس یہی سوچتی ہوں کہ کہاں ہے وہ ہستی جو مجھے پکارا کرتی تھی۔ پاپا مجھے نا بہت یاد آتے ہیں۔ میں اپنے بابا کو اب صرف تصویروں میں ہی دیکھ سکتی ہوں۔ مجھے اپنے بابا کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے اور اب ان کی اس کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ جہاں مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں، پر اس بات کی خوشی بھی ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں اور شہید ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ میرا نام اتشام شراز ہے۔ یہ میرے چاچو محمد راشد شہید، میرے والد صاحب پہلے فوت ہو گئے تھے 2017 میں، پھر اس کے بعد ہمارے چاچو نے ہمارا خیال رکھا۔ ہمارے والد صاحب کی فوتگی کے بعد ہمارے ساتھ ہر طرح کا تعاون کیا، اپنے بچوں کی طرح ہمیں انہوں نے رکھا ہے۔ جب وہ بیڈ پہ تھا، بیڈ لسٹ پہ تھا، تو کہتا تھا صاحبہ یہ مقدر سے شہادت ملتی ہے، اگر مجھے شہادت کی موت آ جائے تو مجھے خدا سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ جب بھی پاپا گھر آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میری لاڈلی بیٹی کدھر ہے۔ اس نے ملک کی خاطر اپنی جان کی قربانی دی۔ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ وہ ایک بہادر انسان تھا۔ مجھے اپنے بابا پہ فخر ہے کہ انہوں نے اپنی جان قربان کر کے لوگوں کی جانیں بچائیں۔ ہماری خوشیوں میں ہمیں ہر پل وہ بہت یاد آتے ہیں۔ میں آج اسلام آباد سے بہت زیادہ مطمئن ہوں، انہوں نے قدم قدم پہ ہمارا ساتھ دیا ہے۔
हमें बेआसरा नहीं छोड़ा है, और अभी भी जब भी कभी मुझे कोई भी मुश्किल आती है तो वो हमेशा हमारा साथ देते हैं। तो मैं बहुत महकमे से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उनकी महकमे ने हमें बहुत सपोर्ट की है। मैं अपने बच्चों को उनके रूप में देखना चाहती हूँ कि वो भी ऐसे बड़े हो कि अपने बाप का नाम रोशन करे, जिस तरह उसके बाप ने कुर्बानियाँ दी है अपने मुल्क के लिए। मैं अपने बाबा को बहुत मिस करती हूँ। आई मिस यू बाबा। वाना जनूबी वज़ीरिस्तान में फ्रंटियर कोर्ट साउथ की जानिब से कबायली अमायदीन और उलमा का ग्रैंड जरगा मुनक़िद किया गया। शुरका ने फितनल खवारिज के खिलाफ जारी जंग में पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का अदा किया। शुरका ने हुकूमत की जानिब से वन डॉक्यूमेंट रजीम को ऐसा इक़दाम और वक्त की ज़रूरत करार दिया। मेजर जनरल मेहर खान, इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर्ट साउथ ने भी जरगे से खिताब किया। शुरका ने इलाके में अमन और खुशहाली के लिए काविशों खुसूसन SIFC के तहत ज़रमिलान लैंड प्रोजेक्ट को सराहा, जिसकी बदौलत ज़मीनों को सैराब किया जा रहा है। कबायली अमायदीन और उलमा ने पाक फौज और फ्रंटियर कोर्ट साउथ के शहदा को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया और जनूबी वज़ीरिस्तान में सेहत, तालीम और तरक्की, खुसूसन बच्चियों की तालीम के लिए पाक फौज की कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। 20 सितंबर 1965 पाकिस्तानी अफवाज ने मैदान जंग में भारतीय अफवाज पर अपनी बरतरी बरकरार रखी और सियालकोट जम्मू सेक्टर में तमाम भारतीय मकबूजा इलाकों पर अपने हमले जारी रखे। वाघा अटॉरी सेक्टर में दुश्मन के 12 टैंक तबाह किए गए। इसी तरह भारत के कुल तबाहशुदा टैंकों की तादाद 494 हो गई। राजस्थान और अखनौर सेक्टर में पाकिस्तानी फौज की तोपों ने भारतीय तोपों को खामोश करा दिया। पाक फजाइया ने मजीद 4 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए, जिससे दुश्मन के तबाह हो जाने वाले जहाज़ों की तादाद 110 हो गई। पाक फजाइया के तैयारों ने भारत के हवाई अड्डों अम्बाला, जोधपुर, जम्मू, जामनगर और हिंदवाड़ा पर नहायत कामयाबी से हवाई अड्डों और तनसीबात को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान नेवी ने बहरे हिंद में अपनी बरतरी बरकरार रखी और भारतीय नेवी की नकलो हरकत को बिल्कुल महदूद कर दिया। गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली बर्बरियत जारी है। इसराइली फौज की जालिमाना कार्रवाई में गजा की पट्टी में मजीद 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। काबिज सहूनी अफवाज ने नसीरत पनाहगुज़ीन कैंप में कार्रवाई करते हुए बच्चों समेत 8 शहरियों को शहीद कर दिया। गजा शहर में एक मकान पर बमबारी के नतीजे में शहीद होने वालों की तादाद 7 हो गई। शुमाली गजा के इलाके बैतुल्लाहिया में भी इसराइली फौज के हमले में एक फ़लस्तीनी शहरी शहीद जबकि मुतादिद ज़ख्मी हुए। खान यूनिस और मगाजी पनाहगुज़ीन कैंप पर हमलों में भी 2 फ़लस्तीनियों की शहीद होने की इत्तलात हैं। गजा पर इसराइली जंग के आगाज़ से अब तक 41,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद जबकि 95,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके कबातिया में इसराइली फ़ौज की कार्रवाई में 7 फ़लस्तीनी शहीद और 18 ज़ख्मी हुए। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को गजा में हुकूक़ अतफ़ाल की वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब करार दे दिया। उधर लिबनान में मुवासलाती आलात में धमाकों के बाद इसराइल और लिबनान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है। हिज़्बुल्लाह ने दावा किया है कि उसने मकबूजा, गोलान और कफार चोबा पहाड़ियों के अतराफ में इसराइल के फौजी अहदाफ पर 17 हमले किए हैं। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के ड्रोन और मिसाइल हमलों में कम से कम 2 इसराइली फौजी हलाक और 9 ज़ख्मी हुए हैं। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इसराइल ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस धमाके करके तमाम हदें पार कर दी हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल ने यह हरकत करके ऐलान जंग किया है। इसराइली हमलों का जवाब इस अंदाज से दिया जाएगा जो शायद उनके वहमो गुमान में भी ना हो। दूसरी जानिब इसराइल ने दावा किया है कि उसके जंगी तैयारों ने जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के 100 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर ठिकानों को निशाना बनाया है। लेबनान की सरकारी खबर रसां एजेंसी का कहना है कि इसराइल ने जुमेरात की शाम मुल्क के जनूब में कम से कम 52 हमले किए हैं। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए सफारती हल को नागुज़ीर करार दिया है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान क्राइन जेन पियर ने सहाफ़ियों को बताया है कि मशरिक़ वस्ता के मसले का सफारती हल मुमकिन है। तर्जुमान ने कहा कि व्हाइट हाउस का ख्याल है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदे से खित्ते में कशीदगी कम होगी। दूसरी जानिब वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी हुकाम का ख्याल है कि गजा में जंगबंदी का मुआहदा जनवरी में सदर जो बाइडन के ओहदा छोड़ने से कबल मुमकिन नहीं है।
नाज़रीन, भारत में इंसाफ एक ख्वाब बनकर रह गया है। मकबूजा कश्मीर से लेकर नागालैंड तक भारतीय फौज बर्बरियत की नित नई मिसालें कायम कर रही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के ज़रिए असर एक और गैर मुनसिफाना फैसला करके इंसाफ का गला घोंट दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2021 नागालैंड में 13 शहरियों की मौत में मुलव्वस 30 फौजियों एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई खत्म कर दी। 4 दिसंबर 2021 को नागालैंड के जिला मून में 30 भारतीय फौजियों ने बिलाश्ताल फायरिंग करके 13 निहत्थे शहरियों को मौत के घाट उतार दिया था। भारतीय पुलिस ने ठोस सबूत होने के बावजूद मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया था। नागालैंड की मजलूम अवाम इंसाफ की उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुंतज़िर थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फौज के 30 एहलकारों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया। मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से हुकूमत और बिलखुसूस भारतीय फौज की जानिब से अपने ही शहरियों पर जुल्म और ज़्यादतियाँ ढाने में इजाफा हुआ है। भारत का दिफाई सलाहियत में सुपर पावर बनने का एक और ख्वाब खलीज बंगाल में गर्क अमेरिका से लीज पर हासिल किया गया भारतीय ड्रोन MQ-9B खलीज बंगाल में गिरकर तबाह हो गया है। ड्रोन बहरे हिंद के वसी इलाके में निगरानी और जासूसी के लिए तैनात किया गया था। तमिलनाडु में भारतीय बहरिया के बेस से कंट्रोल किए जाने वाले ड्रोन की तबाही भारत की जगहसाई का सबब बनी। ड्रोन के तबाह होने की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी हैं। ये वाक़या भारतीय अफवाज की जदीद हथियारों को संभालने की सलाहियत पर एक सवालिया निशान है। दिफाई माहिरीन इसे भारतीय नेवी और बहरे हिंद में निगरानी और जासूसी के हवाले से बड़ा नुकसान करार दे रहे हैं। भारत के जंगी जुनून से हमेशा खित्ते की सालमियत को खतरा लाहक रहा है। भारत को समझना चाहिए कि सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी का हुसूल ही सब कुछ नहीं, इस जदीद टेक्नोलॉजी को संभालने के लिए सलाहियत भी ज़रूरी है। ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया है जब भारत अमरीका से तकरीबन $3.1 बिलियन के मुआहदे के तहत MQ-9B-31 ड्रोन्स की खरीदारी पर बातचीत कर रहा है। ये पहला मौका नहीं है कि भारतीय मुसल्लह अफवाज की जानिब से गैर जिम्मेदारी और नालायकी का मुजाहरा किया गया हो। इससे कबल भी भारतीय फ़ज़ाइया के कई तैयारे तबाह हो चुके हैं। नेवी के बहरी जहाज़ और आबदोज़ भी नाअहली की बायस हादसात का शिकार हो चुके हैं। इन वाक़यात के बाद भारत को जदीद हथियार देने वाले ममालिक को ये देखने की ज़रूरत है कि क्या भारतीय मुसल्लह अफवाज इन हथियारों को संभालने की पूरी सलाहियत भी रखती है या नहीं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि मुल्क की माशी और सियासी बेहतरी के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। तमाम सियासी जमातों को मुल्क के बेहतर मफाद के लिए हुकूमत का साथ देना चाहिए। हुकूमत की कोशिशों से महंगाई की शरह में बतदरीज कमी आ रही है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से पाकिस्तान में जमहूरिया अज़रबैजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोफ ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कहा कि दोनों ममालिक के माबैन देरीना बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मज़हब, सकाफ़त और बाहमी ताउन पर मबनी है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती वफूद के तबादले होने चाहिए। अज़रबैजान के सफ़ीर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के शोबों में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में डेंगू के 45 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर से 3, रावलपिंडी से 39, ओकाड़ा, मंडी बहाउद्दीन और मियांवाली से एक डेंगू का मरीज रिपोर्ट हुआ। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक तमाम सरकारी अस्पतालों में डेंगू समेत दीगर अद्वियात का स्टॉक मौजूद है। महकमा सेहत ने इंसदाद डेंगू के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं। बलूचिस्तान में पोलियो के अब तक 13 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा क़लआ अब्दुल्ला में 5 केसेस रिपोर्ट हुए, जो पाक अफगान सरहद के करीब एक दुश्वार गुज़ार इलाका है। हुकूमत पोलियो जैसे मोज़ी वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इक़दामात कर रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मीर सलाम जोगेज़ई ज़िला क़लआ अब्दुल्ला में पोलियो वायरस से मुतासरा बच्चे और डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन ऑफिसर दौलत खान के साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेंगे वो मौजूदा हालात में क्या इक़दामात कर रहे हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंगल पिरालेजी ज़िला क़लआ अब्दुल्ला, जो कि पाक अफगान बॉर्डर के नज़दीक एक दुश्वार गुजार इलाका है। बलूचिस्तान में इस वक्त पोलियो वायरस के कुल 13 केसेस रिपोर्टेड हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा इस इलाके ज़िला क़लआ अब्दुल्ला में रिपोर्ट 5 केसेस हुए पोलियो वायरस के। अब्दुल्ला एक मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लमेटिक डिस्ट्रिक्ट थ्रू आउट पाकिस्तान अगर हम कहें
तो यहाँ पर एक रिलीजियस मेंटेलिटी पाई जाती है जो वैक्सीन को हराम समझती है। इस बुनियाद पर लोग कुछ बच्चों को तो खुसूसन बच्चियों को वैक्सीन पिलाते हैं क्योंकि वो दूसरे के घरों में जाते हैं, लेकिन बेटों को अक्सर वो पोलियो के खतरों से छुपाते हैं। और किला अब्दुल्ला में WHO काम कर रही है, यूनिसेफ है, CDC है, आकासिस हैं, सारे अपनी इनपुट्स दे रहे। यूनिसेफ जो है ना वो कम्युनिकेशन पे काम कर रही है। कम्युनिटी हमारे साथ लास्ट कैंपेन से पहले हमने पूरे कम्युनिटी थ्रू आउट किला अब्दुल्ला की जितने इन्फ्लुएंसर्स है वो हमने इंगेज कर दिया, उनको हमने राजी किया इस बात पर कि पोलियो पिलाएंगे और पोलियो के साथ मदद भी करेंगे। हर डोर टू डोर वैक्सीनेशन हमने कंप्लीट करवाई है किला अब्दुल्ला में। डोर टू डोर वैक्सीनेशन के बाद हमने यहाँ पर मोबिलाइजेशन की एक्टिविटीज नेक्स्ट वीक से दोबारा शुरू कर रहे हैं कि जो कैंपेन हमारे अक्टूबर में आ रही है उस कैंपेन के लिए तैयारियां हम पहले अभी से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर कबायली जो पॉलिटिकल हमारे हजरात है, कबायली हैं, रिलीजियस हैं, उनकी सबके हमने प्रोफाइलिंग की हुई है। किला अब्दुल्ला इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर हमने 2790 इन्फ्लुएंसर्स आइडेंटिफाई किए। आबादी के तनासब से ये काफी छोटी डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन हमने 27 स्ट्रीट वाइज इन्फ्लुएंसर आइडेंटिफाई किया जो खतीब्स हैं, उन सब के साथ हम मिले हैं। हमारे स्टाफ है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, वो नेटवर्क वहाँ पर हम गए, डोर टू डोर हम गए, लोगों को अवेयर दी कि व्हाट इज पोलियो एंड व्हाट इज पोलियो फॉर, ये मैसेज हमने घर घर तक पहुंचाई। चुनांचन वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक पहुँचाने के लिए रहीम यार खान की ज़िला इंतज़ामिया ने भी पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी कर दी है। इसी बारे में मज़ीद तफसील से अपडेट कर रहे हैं अशफाक अहमद इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक पहुँचाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर रहीम यार खान की ज़िली इंतज़ामिया ने पब्लिक और गुड ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% कमी कर दी है। किरायों में कमी पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। रहीम यार खान में मुसाफरों से ज़ायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को 3 लाख रुपए से ज़्यादा जुर्माने, जबकि मौके पर मुसाफरों से वसूल किया गया ज़ायद किराया भी वापस दिलवा दिया गया है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा नीचे आई हैं, कम हुई हैं, तो ये हुकूमत पंजाब की हदायत है कि इसके समरात जनरल पब्लिक तक पहुँचने चाहिए। तो हमने तमाम ट्रांसपोर्टरों के साथ मीटिंग करके इनको किराएनामे बना के दे दिए हैं और उसकी अभी इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं। बस वालों ने ज़्यादा किराया लिया था, इंतज़ामिया का शुक्र है किराया वापस करवाया है। पेट्रोल सस्ता हो गया है तो ये वही किराए पे रुके हुए हैं, तो अभी वापस कराया हमें। मेहरबानी है गवर्नमेंट की, उन्होंने डीजल और पेट्रोल सस्ता किया जिस वजह से किराया भी कम हुआ है। जिला रहीम यार खान की 4 तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर को पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों को मॉनिटरिंग करने की हिदायत की गई है। कम किरायों पर अमल दरामद के लिए ट्रैफिक पुलिस, हाईवेज और मोटरवे पुलिस में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पर मुश्तमिल खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई है। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% कमी से अशिया खुर्दोनोश की कीमतें कम हो रही हैं, जिससे महंगाई में भी कमी आएगी। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी के बाद साहिवाल के ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 5% कमी कर दी है। तफसील बताएंगे खावर अकील। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी के बाद साहिवाल के ट्रांसपोर्टरों ने भी किरायों में कमी कर दी है। ज़िला इंतज़ामिया ने नॉन AC गाड़ियों के किराए में 5% और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% कमी कर दी है। हमने तमाम AC और नॉन AC दोनों किस्म की बसेज और वैगन्स के जो है किराया में 5% कमी कर दी है। हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इसको चेक कर रहे हैं। किरायों में कमी के बाद शहर के अंदर चलने वाली ट्रांसपोर्ट और बैनुल ज़िलाही ट्रांसपोर्ट के मुसाफिरों ने किराए पर रिलीफ मिलने पर इत्मीनान का इजहार किया है। गवर्नमेंट की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी हुई है और दूसरे शहरों में आने जाने के लिए किरायों में भी कमी हुई है, तो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। किरायों में भी कमी आई है, हम भी खुश हैं और हमारी गवर्नमेंट का भी शुक्रिया। पेट्रोल और डीजल की कमी की वजह से किरायों में भी कमी की गई है, हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। माल बरदार गाड़ियों के किरायों में कमी होने से खाने पीने की चीज़ों में कीमतों में कमी, इससे महंगाई की शरह में भी कमी आई है। खावर अली चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, साहिवाल। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मंडी बहाउद्दीन में अशराए रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अक़ीदत और एहतराम और मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर कॉलेज की बिल्डिंग को बरकी कुमकुमों और रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर इनायतुल्लाह कारी की ज़ेर निगरानी कॉलेज हसा में मुतादिद प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया।
کالج میں ضلع منڈی بہاؤدین کے تمام کالجز کے طلباء کے درمیان مقابلہ حسن قرات منعقد ہوا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر تقریری مقابلے کا انعقاد بھی کیا گیا۔ اس دوران کالج کی مرکزی لائبریری میں طلباء کے درمیان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر مضمون نویسی کے مقابلہ جات بھی ہوئے، جس میں طلباء نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کیا۔ ان تمام مقابلوں میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج کے طلباء نے اول انعامات حاصل کیے۔ کالج کے مرکزی کانفرنس ہال میں پرنسپل پروفیسر عنایت اللہ قاری کی زیر صدارت نعت خوانی کے مقابلے کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں وائس پرنسپل پروفیسر طارق حسین مغل، پروفیسر اقبال سیماب مانگٹ سمیت کالج کے لیکچرار، پروفیسرز اور طلباء نے بھرپور شرکت کی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے زیر اہتمام گورنمنٹ گریجویٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں نعتیہ مقابلے کی تقریب منعقد ہوئی۔ مختلف اسکولوں، کالجز اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات نے نعتیہ مقابلے میں شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر ملک توقیر احمد خان، ڈائریکٹر جنرل ریجنل سروس تھے۔ تقریب میں ریجنل ڈائریکٹر مسز نسرین اختر مرزا، پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی پروفیسر امتیاز مدنی اور دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ آخر میں پوزیشن حاصل کرنے والوں میں انعامات اور قرآن پاک تقسیم کیے گئے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مضافات میں اذان جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، سعادت حاصل کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا اللهم صل على سيدنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو رزق کی کشادگی یا عمر کی درازی بھلی لگے وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ اللهم صل على خبر نامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔
नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले नौकुंडी की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सखर में 41, जोहराबाद में 40, सरगोदा में 39, जबकि कोहाट में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल, और अब खबरनामे में आप खेल की दुनिया का अहवाल जान सकेंगे।